क्या हमारे पास में आज, मैं चंडीगढ़ का ही एक एग्जांपल लेके चलूं, पानी की अवेलेबिलिटी हमारे पास में इतनी है कि जो हम रीजनल सेटिंग में हमारे 10 टाउन्स और हैं, आप केवल चंडीगढ़ को ट्राई सिटी के रूप में ना देखें, इसको हम ये माने कि ये आपका एक ग्रुप ऑफ 10 to 11 टाउन्स है। आप चंडीगढ़ मदर सिटी है हमारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके ट्विन सिस्टर्स या ब्रदर्स आप कहेंगे कि आपका माहौली और पंचकुला है। फिर व्हाट अबाउट आवर अदर्स जो टाउन्स हैं हमारे 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में है, जैसे हमारा कुराली है, खरड़ है, बनूड़ है, जीरकपुर है, डेरा बसी है, पंचकुला में बरवाला है, पिंजौर है, कालका है। इन सब की जब तक हम हमारी रीजनल सेटिंग में वो ध्यान में नहीं रखेंगे, तब तक हम ट्राई सिटी की सोच भी नहीं सकते। 5 लाख पॉपुलेशन के लिए आपने चंडीगढ़ को बनाया। जी जी जी। आज आपकी जो हिंटरलैंड और इन 11 टाउन्स की पॉपुलेशन है वो करीब करीब 50 लाख को क्रॉस कर गई है। 50 लाख की जो आपने आबादी को फीड करना है, फिर रीजनल सेंटर बन गया है आपका ट्राई सिटी। उस सूरत में क्या हमारी रिक्वायर्ड रीजनल सेटिंग में कनेक्टिविटी, वाटर, ड्रेनेज सिस्टम, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या ये हमने प्रोवाइड किया है? इसमें हमारा पब्लिक का रोल भी है और गवर्नमेंट का भी है। गमाडा ने बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट। बिल्कुल, आपने बात सही कही है, मैं आपको रुकना चाहूँगा, मगर मैं जानना चाहूँगा कड़ई के चेयरमैन हैं जो कि क्या जो बोले जा रहा है कि प्लानिंग के लिए होना चाहिए, माजा साहब तुसी की दसना चाहते हो कि प्लानिंग इदा होंदी है और कड़ई का रोल की है, वैसे मुझे भी दस दो एक बारी। सी, सबसे पहले तो आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट जी फॉर टेकिंग दिस initiative and promoting Tri-City because it deserves, the Tri-City deserves. So sometimes we say in routine that soon Chandigarh will be poor cousin of Mohali. The reason being the private players, the way they work, we work around the clock and we want same kind of support from our governing authorities. And we are really happy that we are contributing something for the development of the great country like India. So this credit goes to Z. Kadai is a national body. We are largest stakeholder of largest player and taking care of all the stakeholders, including our realty players, the manufacturers, the end users, and of course, the ancillary industries also. We support around 269 ancillary industries. So I am representing as the president. You have made me more senior by saying that I am chairman. So when we are sitting vis-a-vis the two my senior panelists from RERA, ma'am, and from the country and town planning, the thing starts from the planning. And RERA, when we talk of RERA, RERA plays a major role because it's a governing body, and we are pushing that RERA should, as it has come, it should be given lead in governing the and supporting the realty sector and taking care of the realty sector instead of the other law enforcing bodies, because it is a specialized field and the sector which is contributing great to the GDP of the country. We are contributing around 8.5% to the GDP of the country. And when we talk of Punjab, it is 18%. And if we take the sector as a whole, it will be around 47 to 50% contribution. And if such sector is given a kind of a little bit of treatment it deserves, and RERA is, when RERA is there, we are in safe hands because we are also heard in RERA. Punjabi ch bolo tusi. Achha, true. The thing is, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੈਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੈਟ ਵੈਲਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਰੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ
The end users are the backbone of this industry, क्योंकि जो भी ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਰੈਰਾ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਰਡੇਈ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ to all the departments, so that helps in making of the beautiful India. इस महत्वपूर्ण चर्चा के बीच जो है अगले सवाल का जवाब मैं डॉक्टर गीता राठी सिंह से लेना चाहूँगा। मैम, आपको इस वक्त करोड़ों जो दर्शक हैं वो सुनना चाहेंगे और यहाँ पर बैठे हुए तमाम हमारे मेहमान भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट में जिस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, 62,000 करोड़ रुपए के जो ये इन्वेस्टमेंट्स पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेरा पर जो है वो एक बड़ी जिम्मेवारी रहती है, क्योंकि कंज्यूमर और इन्वेस्टर के बीच जो है रेरा किस तरीके से दोनों को ही रेगुलेट कर रहा है और क्या बातें कंज्यूमर को समझनी चाहिए और क्या बातें इन्वेस्टर को समझनी चाहिए। Thank you, first of all, Zee Punjab, Haryana, Himachal, for creating this platform where all the stakeholders can come and discuss the issues pertaining to the real estate sector. I think we all know the real estate sector, it has almost become the backbone for the Indian economy. We are one of the largest contributors to the development of the country. So now it has to be seen that it is a very, very major and important role that this sector is playing. So all of you who are present here, you're contributing in your own ways to the development of this country. So you all out here have come with this huge responsibility that how and where you're going to take this country forward to. Whatever the infrastructure developments are there in the real estate sector, it creates a brand for the country. जब हम अब दुबई की बात करते हैं, दुबई में भी टॉक अबाउट द हाई राइज, उन्होंने अपने लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक कंट्री के लिए ब्रांड क्रिएट किया. सिमिलरली इन इंडिया ऑल्सो the real estate sector, all the promoters, the developers, you're contributing to that development, you're contributing to the development of this country. Now it has to be seen that, RERA, why was RERA required? The real estate sector was there before the RERA came into force. Then what was the need to have RERA? So, primarily after 2005, there was a boom in the real estate sector, huge investments coming and flowing into the country. However, there were no standard business practices being followed. हर किसी का अपना एक तरीका था काम करने का. Everybody was working in their own ways. हर state के अपने land laws अलग थे. So there was no organized way to carry out the business. So after some time it was felt, कि कुछ projects distress हुए because there were no standard practices, there were no standard guidelines. So RERA came into force. So जब RERA आया, सबसे पहला apprehension जो कहीं ना कहीं सेक्टर के दिमाग में था कि एक और रेगुलेटर, एक और लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आके बिठा दिया गया, which was not the case. Primarily जब भी एक नया रेगुलेशन आता है, कानून आता है, उसको लेके एक अडेप्टेबिलिटी को लेके इश्यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हमें बोला गया था पहली बार कि सीट बेल्ट लगानी है गाड़ी में, बड़ी परेशानी होती थी ना सभी को. बट ग्रेजुअली वी ऑल लर्न कि ये सीट बेल्ट हमारी ही प्रोटेक्शन के लिए है. एंड नाउ वी ऑल आर यूज टू इट. अब हम सब गाड़ी में बैठते हैं, ऑटोमेटिकली वो सीट बेल्ट लग जाती है. सेम इज द केस विद रेरा. रेरा इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट सेक्टर. इट इज देयर to help the sector develop. However, it is also there to regulate the sector so that whatever development is there, it is within the certain boundaries. हर कोई एक standard business practices को follow करें. जैसे कि ये पूछा गया है कि एक रेरा एक क्या लिंक क्रिएट करता है कंज्यूमर और एक बिल्डर के बीच में. जो सबसे बड़ी और एक अच्छी चीज़ रेरा आने के बाद हुई कि रेरा एक्ट इज़ द ओनली एक्ट दैट इज़ बेस्ड ऑन इक्विटी, जो ये कहता है शुरू से ही कि प्रमोटर और बिल्डर और जो कंज्यूमर है उनके जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं और सबका पूरा करने का इक्वल ही उनके ऊपर दायित्व है. अगर बिल्डर की, प्रमोटर की कोई ऑब्लिगेशन है वो भी वो पूरे करेंगे, और कुछ जो राइट्स एंड ड्यूटीज़
जो स्पेशली सेक्शन 19 में प्रोवाइडेड है, वो अलॉटी की भी हैं, वो भी अपनी पूरी करेंगे। दिस इज द ओनली एक्ट दैट इज बेस्ड अपॉन इक्विटी। और जहाँ पे इक्विटी आती है वहाँ पे एवरीबडी नोज कि हाँ हमारे अपने ये दायित्व हैं और हमें जो पूरे करने हैं। हमसे पहले जो पैनल डिस्कशन था उसमें एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था कि रेरा की तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है। सो आई थिंक हरियाणा रेरा के बिहाफ आई वुड लाइक टू से कि सिंगल विंडो होनी चाहिए, एक्सपेडाइट होनी चाहिए। सिंस आई एम हेयर ऑन बिहाफ ऑफ हरियाणा रेरा पंचकुला, आई वुड, आप सभी यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स भी हैं सेक्टर में, रेरा पंचकुला is one of the RERAs which is granting the registration within 30 days. हम 30 दिन में एप्लीकेशन के आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, या फिर आपको कहते हैं कि जी ये आपकी कमी पेशियां हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं बनता, आप आपका जब सारे कागज होंगे आप अपना आ जाएगा। बट वी आर द ओनली वन इन द कंट्री विच एक्चुअली इश्यूज आरसी विद इन 30 डेज। हम 31वां दिन नहीं होने देते। सो एज फार एज compliances are concerned, to simplify those compliances, एक और जो बैरियर, मेंटल बैरियर आता है जब रजिस्ट्रेशन लेने जाता है कि भाई बहुत पेपर वर्क होगा, रेरा पंचकुला हैज सिंप्लीफाइड दैट पेपर वर्क। हमने अपनी कुछ SOPs गाइडलाइंस तैयार करी हैं, इट इज़ इन पब्लिक परव्यू, हर किसी को पता है जी ये चीज़ें करनी है, यू जस्ट हैव टू टेक दोज थिंग। आप आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। दिस इज हाउ वी आर ईजिंग आउट the business practices कि आपके लिए there we are providing ease to carry out businesses, so we are facilitating the development in that form। जहाँ तक कंज्यूमर आता है, कंज्यूमर की भी जो कंप्लेंट्स हैं we try to expedite them कि जितनी जल्दी उनका समाधान निकाला जाए। and yes, after this last 3-4 years we have seen there is a very positive outlook। अब जो सेक्टर में भी ये है कि they also want to deliver on time, और आपको जो बिल्डर्स हैं वो भी अब क्योंकि रेरा आ गया है, रेरा आया है तो रेरा है तो भरोसा है, एक कंज्यूमर में रेरा आने की वजह से वो कॉन्फिडेंस आया है।